आपको अपनी बात के दौरान आपसे शेयर करूंगा। मोहतरमा महानूर गुल साहिबा मेरी बेटी है। वर्ड द डिटेल्स अबाउट हर कंट्रीब्यूशन जो इस लुमन उन्होंने की, एंड आई रियली अप्रिशिएट द गुड वर्क शी हैज डन। हमजा अतर, I was pleasantly surprised is son of my colleague in the assembly, and his pastor is president of women, and I do have some memories with this institution, and those go back to Justice Fazil Karim Sahab. Whatever practice I did, I can fairly say that I actually did my whole practice through his books, through his lens. And he had been a guiding source throughout my professional career. तो इस अदारे के साथ, इस यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ मुझे कुछ उनकी निस्बत से भी यादें हैं। Then I have a couple of my associates with me. They have been students here, and then they have been part of the faculty also. So I keep on hearing good things which this institute is doing. मैं जब बस आपके पंडाल में दाखिल हो रहा था, तो I just had a look around and I saw these energetic faces. तो मुझे एक अपने बचपन का, बल्कि अपने स्कूल के ज़माने का, मुझे एक वो मुकालमा याद आया जब ये बात बड़े जोर से हमें कही जाती थी कि आप लोग हदूद को तोड़ रहे हो, आप उस जो चीजें आपको हम बता रहे हैं उसको सुनने के बजाय अपनी बात कर रहे हो। तो मुझे कैसा लगता था? मुझे लगता था कि गालिबन probably what they are asking me to do, they are not just asking me, they are compelling me, they are telling me to do, and I don't think that what they are saying is right. Probably the right thing is what I am saying. तो मेरी शायद ये उम्र का तकाजा था कि मुझे अपनी हर चीज, अपनी कही हुई चीज अच्छी लगती थी। फिर जब मैं उस मुकालमे में पहुंचा तो मुझे ये पता चला कि जो मेरे ख्वाब थे, जो मेरी ख्वाहिशें थी, जिनके ऊपर मैंने अपनी उम्मीदें बांधी थी, मैंने तो ये तस्वुर किया था कि मैं फातेह दुनिया होऊंगा। मैंने ये तस्वुर किया था कि मैं जिस प्रोफेशन में भी जाऊंगा, आई विल बी एट द टॉप। मैंने ये तस्वुर किया था कि मैं एक्सेल करूंगा, आई चेंज द वर्ल्ड। मैंने ये तस्वुर किया था, मेरी आंखों में बड़े ख्वाब बसे थे और मेरी उम्र मेरी तरफ थी, और मैं उन ख्वाबों की परसूट में एक परजर्वेंस में अपने अंदर सोचता था कि हर सूरत कायम रहेगी। मेरे जो ख्वाबों में मेरी दुनिया थी, उसको गलत नहीं कहा जा सकता, ये दुरुस्त दुनिया थी। अगर मैं सोचूं तो वो दुनिया जिनका एक नौजवान जिनको अपना महवर बनाता है, वही दुरुस्त दुनिया है। उसी में तरक्की है, उसी में सारी वो आज की अच्छी अच्छी बातें जो बाद में मैं अपने इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद फाइल सिट डाउन टू राइट अ बुक, तो मैं वो सारी बातें उसी उम्र की लिखूंगा जो मेरी ख्वाबों का महफिल थी, मेरी आंखों के अंदर जो उम्मीद थी। So frankly speaking, what youth thinks is actually the right path. And I have gone through the details of your activity of Lumen. I had an experience of being a part of the delegations in the United Nations. I've had a privilege to be part of Pakistani delegation on 4 different occasions. And now I look back and I think if I would have had this chance, which Lumen is providing, that I have been gone through the exercise of these committee workings, I would have gone through the exercise of these dialogues. Very interesting, this cross-border dialogue. Osama Saab is my colleague in assembly, and he just told me that it's very interesting, a topic they have, and I was just planning to come over. That this dialogue, cross-border dialogue, it has a lot of meaning. और मुझे जब ये तफसील बताई गई कि आप लोगों ने अपनी इस एक्टिविटी में जो सेशंस किए, आपने अपनी कमेटीज बनाई,
आपने इसमें पाकिस्तान के डेलीगेशंस बनाए, आपने इसमें नेशनल असेंबली के IPU रिलेटेड डेलीगेशंस बनाए, आपने इसमें ट्रेड पे, आपने इसमें बॉर्डर एक्टिविटीज में, आपने सिक्योरिटी के मुतालिक आपकी इंटरेक्शंस, मेकिंग टीम्स फ्रॉम one country and sitting with the second country. So these are not just mock exercises. Mark my words for this. This experience, this bag will go with you. This will be something which will be a way forward. जब आप अपनी practical life में जाएंगे तो आपको आज की ये exercises exactly ऐसे reflect करेंगी जैसी आप लोग कर रहे हैं. I have been part of those exercises. And this is very rich experience which you are gaining here. So I think that Lumen, I have heard that from last almost 2 decades, आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं और इसके साथ आप बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. यू आर प्रिपेयरिंग द फ्यूचर लीडर्स. और यहाँ पर जो बाकी यूनिवर्सिटीज से लोग आए हुए हैं, मुझे हफीज साहब की बात सुन के आपसे ये शेयर जरूर करना है. देखिए, मैं एक ऐसे निजाम में जिंदा हूं जहां पर सिर्फ 3% लोग, जस्ट 3% आप लोग वो हैं जिनके हाथ में ये जो प्राइवेट एजुकेशन है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन देयर आर 3% ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स जो आपकी प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटीज तक, जिन पे 60,000 रुपया हफ्तावार खर्च होता है, 60,000 rupees, और उसकी A कैटेगरी है, then it's a B, it might come to 30-40, then there's a C category, it might have an expense of 15 to 20,000, and then there's a D category which is in any case more than 10,000 per week. And the 97% of our population, जिस 2.5 करोड़ के आउट ऑफ स्कूल, 2.25 करोड़ के आउट ऑफ स्कूल का जिक्र हफीज भाई कर रहे थे, उनमें से जो स्कूल में जाते हैं उन पर माहवार अगर आप गिनती करें तो 3,000 रुपया खर्च होता है. कुल मिला के पूरे साल का 33,000 रुपया हम उन पर खर्च करते हैं. सो दिस डिस्पैरिटी, वन बॉय और गर्ल इज हैविंग सम एक्सपीरियंस which is basically 60,000 rupees per week, or one boy and girl, they are just being spent rupees 30,000 per year, which hardly becomes 87 or 88. I have just spoken to the UHS principal and I asked that the list of merit you have maintained here, these boys are from HSM colleges, these boys are from Ivy Leagues, these boys are from these beacon houses, or I'm not against them, but at least have some heart to prepare a different this एक इनका मेरिट सिलेक्शन तो आप अलग से कर लें और या फिर वसाइल का रुख उनकी तरफ मोड़े. ऐसा एलीट कैप्चर है. Osama साहब gave me this detail that in UNDP's report of 2021, total of our GDP's 6% goes to the subsidy which our elites receive. Now you can just imagine, 17.5 billion was the number. $17.5 billion I'm talking of. और किस चीज पे सब्सिडी लेंगे भी, किसके नाम पे? किसान के नाम पे ले लेंगे. सब्सिडी किसके नाम पे लेंगे? उनके नाम पे लेंगे जिनकी एक्सप्लॉइट की जाएगी पोजीशन. तो मैंने इनसे कहा कि ये कैसा झगड़ा होगा, एक तरफ तो डिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी की बात होगी और एक तरफ ग्रोथ इंजन्स की बात होगी, तो हु विल टॉक इट आउट, कौन इस पे बात करेंगे? ये आपके सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है. यहां पर बैठ के आप जब डायलॉग करेंगे, यूनाइटेड नेशंस के एजेंडास क्या है? यूनाइटेड नेशंस के एजेंडास में आपके पास इन ऑल फॉर्म्स एक्सप्लॉइटेशन का खात्मा है. दुनिया के लोग बैठते हैं, कमेटीज बैठते हैं. आपने सोचना है, सोच विचार करनी है. आपकी इसी लुमन में आपके पास ये सब्जेक्ट मैटर्स होंगे कि आपने क्या सोचना है कि इन ऑल फॉर्म्स, हर तरह की एक्सप्लॉइटेशन, मे दैट बी एन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एलीट कैप्चर, यू हैव टू टॉक फॉर दैट. May that be an exploitation that the distributive
justice should be done. I'm not speaking of some socialist idea here, but I'm just giving you the detail that this is the state of affairs. These are the challenges which you are confronted with. और ये जो आपकी ट्रेनिंग है आज, जो आज आपको लुमेन प्रोवाइड कर रही है और आपकी यूनिवर्सिटीज ने आप में से चुनिंदा बच्चों को यहाँ पर भेजा है, obviously based upon their a skill of articulation, obviously based upon their academic careers, obviously based upon their extracurricular activities in which you excel in your own institutions. तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप जब भी इस फोरम पे अपनी बातचीत और डायलॉग, क्रॉस बॉर्डर डायलॉग्स में आज बड़ी अहमियत के हामिल सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी को वाज़े तौर पे इम्पैक्ट करते हैं. ये एक्सप्लॉइटेशन स्टेट टू स्टेट भी हो सकती है, ये रीजनल एक्सप्लॉइटेशंस भी हैं, ये यहाँ पर वो एक्सप्लॉइटेशंस भी हैं जो कि किसी एक की सोच हो सकती है कि अपनी हेजेमनी क्रिएट कर ले यहाँ पर. तो ये क्रॉस बॉर्डर dialogues are extremely important. One of the pertinent cases we have, and I would love that the centers like LUMS and these institutions जो यहाँ पे तफसील मैंने जिन इदारों की देखी है, अगर आपके बच्चे और बच्चियां अपने रिसर्च सेंटर में just been to the library before coming here, the one which was contributed by late Khalid Ishaq, there could be no better contribution which late Khalid Ishaq, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे. देखिए, ये आज पानी का मसला है, आज मेरी क्लाइमेट का एक सीरियस प्रॉब्लम है. These should be your subjects. Whether these treaties like Indus Water Treaty could be unilaterally revoked, what role India has played, can they revoke that? Is this right what they did? Do I have some low riparian rights, or can they unilaterally just take it off? If they do it, what will be their status with their upper stream? कैसे वो करेंगे कि ब्रह्मपुत्रा के साथ जो उनके बंदोबस्त हैं, क्या वही बंदोबस्त हिंदुस्तान के मेरे सिंध, पंजाब और पंजाब के बाकी दरियाओं के साथ नहीं है? तो वो स्ट्रीम को कहां पे रोक सकते हैं? कैसे मुझे वो अपने इस वाटर टेररिज्म का शिकार कर सकते हैं कि मेरी कमोबेश 7 करोड़ की आबादी मुतासिर हो और जब दिल करे वो फ्लड्स खोल दे और जब दिल करे डैम्स के बंद बना के बिठा दे? तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आपके डायलॉग्स, जिसके अंदर आपकी इनपुट, आपके वर्किंग पेपर्स, जब आप इसको कंक्लूड करते हैं तो आपका जो पेपर पब्लिश होता है, दिस कुड बी समथिंग व्हिच कुड बी बेनिफिशियल फॉर दोज हु एक्चुअली, इसकी एक एकेडमिक बड़ी जबरदस्त वैल्यू होगी. फाइनली मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए, आई डोंट वांट टू बोर यू विद these lectures. Obviously you know better than me, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं